Thank you everyone. Thank you, Mr. Sonu, for the last thing also. So this was the event. We did it on 15th of April. You know this event, launch of Punjabi Hills Airport. Just a few glimpses of it. So what do you have expectations regarding this event? I'm excited to be here. Any business start from the concept stage, that is from an idea. So this is the ecosystem in the new Navy, which has come from the ministry itself. I'm truly honored today to see such a talent, all and vulnerable, ready to make a difference. Fortunately, our startup that we are funded today, we look forward to take it to new heights. When we asked our members to pitch, I know pitches doesn't a budget, but the reason we ask for pitches that gives us an idea on the homework here. We don't need to copy the Amazons or the Ubers of the world. We have our own unique problems and our solutions will become the Ubers of the world. So thank you everyone for coming. So this was our last event we did on 15th of April, launch of event. I think Mr. Sonu presented that video. तो I think ये उसी का एक ट्रिक है कि मैंने 15th अप्रैल डेट अनाउंस कर दी थी. मैं क्या अब देखा जाएगा जो होगा पहले अनाउंस कर देता हूँ डेट, फिर अपने आप चीजें सेट होनी शुरू हो जाएंगी. एंड आई डिड इट ऑल अलोन कि अब लॉन्च करना पड़ेगा तो एक अच्छे से लॉन्च करो. And then we can go ahead with things and all, just to create that impact in the city. Then everyone post that came and joined me and all, and as a part of that things and all. So, Mr. Sonu talked about communities. So communities is just a teamwork, I would say. Everything is a teamwork. हम कहीं भी जाते हैं, टीम वर्क जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही ये सब कम्युनिटीज को एक्सपैंड करना. लाइक माइंडेडनेस, वेयर यू हैव टू गो, आपको उस कम्युनिटी के साथ जाना. आप जहाँ पे हो तो वो तो उस ग्रुप में हो ही हो. जहाँ आप जाना चाहते हो, यू हैव टू बी इन दैट कम्युनिटी. सो आई एम ऑन अ मिशन टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ इकोसिस्टम. हमें ना यहाँ पे बोला जाता है पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पे तो इकोसिस्टम ही नहीं है. जाओ तो बैंगलोर जाओ. स्टार्टअप कहते हैं थोड़ा सा ग्रो और बैंगलोर चलते हैं, है ना. सो आई एम ऑन दैट मिशन एक्चुअली to create that ecosystem over here कि कोई ये ना कहे कि बैंगलोर जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा या मुंबई जाना पड़ेगा सब चीज़ों के. So I am building that ecosystem, but I need support of everyone, है ना. So if you see, अगर यहाँ पे ऑडियंस में पूछूं स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं, इन्वेस्टमेंट्स ये टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड MSME, जिससे भी मेरी डिस्कशन हो चुकी है वो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर समझ डिफरेंस क्या है स्टार्टअप और MSME में. एनीवन? अभी वो मेरी वीडियो में आ रहा था ना, एनर्जी है तो एनर्जी है नहीं एनर्जी है अभी भी नहीं आ रही एनर्जी. स्टार्टअप इज समथिंग यू आर नर्चरिंग एन आइडिया. MSME की आपने उस आइडिया को ऑलरेडी एक यूनिट या एक 2 steps ahead आप जा चुके हैं. ओके. I would say startup is a high-speed machine basically, as compared to MSME. Okay. Wherein trial and error happen very quickly. Trial and error. Okay. Anything? Scalability. Okay.
और कुछ? Primarily, I think you can still scale an MSME business as well, and it can happen in those as well. But the primary difference is something that has been established for a long time, which has been qualified in our old times as MSME. And startup is an ecosystem which is basically like new nurture, still trying to build a concept, validation, and some funds, make at least a solid business model. सो मैं बीइंग अ फाइनेंस गाय ना हर चीज को नंबर में कहता हूँ। कोई कहता है ग्रोथ कर रहा हूँ, ग्रो कितना कर रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, कितना अच्छा हूँ, नंबर्स कि मैं ग्रो कर रहा हूँ तो कितने परसेंटेज से ग्रो कर रहा हूँ, है ना। सो यू नीड टू हैव नंबर्स एंड ऑल। तो अगर एक बात बताऊँ मुझे, स्टार्टअप 5 लाख का भी स्टार्टअप होता है, 5 लाख का भी एमएसएमई होता है क्या नहीं? यस और नो? 50 लाख का स्टार्टअप होता है, 50 लाख का एमएसएमई होता है। 5 करोड़ का स्टार्टअप होता है, 5 करोड़ का एमएसएमई होता है। 50 करोड़ का भी स्टार्टअप होता है, 50 करोड़ का भी एमएसएमई होता है क्या नहीं? हम इस पे न जाए, हमें गवर्नमेंट की डेफिनेशन की बात ही कर देता हूँ। स्केलेबल बिजनेस मॉडल, एज सेजल सेड, स्केलेबिलिटी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड एमएसएमई इज स्केलेबिलिटी। जो बिजनेस स्केल कर सकता है एट अ राइट स्पीड, 20 साल में एक नया आउटलेट नहीं कि एक जनरेशन एक आउटलेट खोला, नेक्स्ट जनरेशन दूसरा आउटलेट खोल रही है आगे, नहीं। Every month, every year, you are scaling up. So if you have that model that you can scale up, है ना? तो लेंस कार्ड क्या चश्मे तो बेच रहा है क्या नहीं? तो चश्मे तो पहले भी बिकते आ रहे थे। तो स्टार्टअप कैसे हो गया? इसीलिए हुआ क्योंकि उसने पूरे दुनिया में अब लेंस कार्ड के स्टोर्स खोल विद सर्टेन मॉडल। तो इसलिए अपने आप को जो भी स्केल करना चाहता है ना, वो भी स्टार्टअप ही है समझो। और ये कोई एज बार या कुछ नहीं है। इसलिए I always say, कोई somebody asks me what you do, I say scale organizations, whether it's a startup, whether it's a MSME. But sometimes MSME, as rightly said by people, कि is some years have gone, things have gone, तो हम करते हैं। तो इसीलिए वो जैसे था ना कि अर्ली एज में कि जो बच्चा काम कर रहा है क्योंकि हमें वो लगता है कि नहीं कर सकते, यार मैं थोड़ी फंडिंग मांगने जाऊंगा, अब मैं थोड़ी एडवाइस मांगने जाऊंगा, मेरे को तो 20 साल हो गए इस काम में, अब तो मैं एडवाइस देता हूँ। So if we can remove that barrier, unlearn to learn new things. So if you can remove that barrier, unlearning and then learning new things, I think you can scale up easily. So this is बाकी तो सब definition वैसे ही है। Ultimately scalable business model जो startup को करता है। Next please. So this is how I try to create. So अभी इन्होंने कहा कि हम हर एक चीज कर रहे हैं, स्टार्टअप भी कर रहे हैं, MSME भी, इनक्यूबेशन भी। आप लोग सब कह रहे हो यार ये कौन इतने काम कर सकता है, कैसे पॉसिबल है? ये ऐसी बोलिए ना, अल्टीमेटली होना कुछ नहीं है। पर मेरा ना शुरू से ही बचपन से ऐसे हो रहा है, जो जिस टाइम काम कर रहे हो ना बस उस पर ध्यान दे लो, सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, इन सेंस जब पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, जब खेल रहे हो तो खेल रहे हो, जब मूवी देख रहे हो तो मूवी देख लो। तो मूवी देखते हैं ऑफिस नहीं, ऑफिस देखते हैं घर नहीं, घर देखते हैं कोई और चीजें नहीं, सब काम हो जाता है। सो आई हैव डिफाइंड अ कंप्लीट प्लान टू इट। किस टाइम पे, कौन से वीक में, कौन से दिन किसके ऊपर फोकस करना है। एक तो वो कहते हैं ना आपके, वो कहते हैं घर को साफ करने में कितना टाइम लगता है, एक बंदा कहता है 30 दिन, एक कहता है 10 दिन, और एक बंदा कहता है किसकी डेफिनेशन उसके पता नहीं किसकी, कि जितने दिन आप सोचोगे उतने दिन। ठीक है, कि जितने दिन आप सोचोगे, तो एक्चुअली जितना आपका टाइम होता है ना आप उतने दिन ही लगाते हो, एज सिंपल एज दैट। तो जितना टाइम हम सोचेंगे कि ये इस वीक में मुझे इस कम्युनिटी के ऊपर पूरा वीक काम करना है, इस चीज के ऊपर काम करना है, तो हम वो डेडिकेटली उस वीक के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट्स बाय दैट वी विल बी हैविंग मल्टीपल थिंग्स बट डेडिकेटेड वन एट अ टाइम, ताकि कोई मिक्स एंड चीजें ना हो। ये नहीं हो कि एक ही चीज करते रहे या बस इवेंट्स ही करते रहे। सो एवरी पार्ट हैज इट्स ओन टाइमिंग एंड ऑल। सो वी विल बी वर्किंग ऑन एग्जिस्टिंग इंक्यूबेशन सेंटर, फंड रेजिंग, ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वो इसलिए 90% फंडिंग नहीं मिल पा रही है कमिट होने के बाद, है ना। कमिटमेंट होगी, टर्म शीट भी साइन होगी, बट ड्यू डिलिजेंस के अंदर पैसे नहीं मिलते, है ना। सो बहुत सारे कंप्लायंस चीजें जो प्रॉब्लम होती है। सो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट, मेंटरशिप प्रोग्राम्स इन प्रिलिमिनरी कोर्स फॉर स्टार्टअप्स। So this is a course is not just a 3 years. So अभी मैं डिटेल में इसको एंड में भी बताऊंगा। Every third Saturday I fix up कि किसी को भी इकोसिस्टम के बारे में समझना है ना, that वो आए हमारे पास, हम समझाएंगे। जैसे फाउंडर्स एग्रीमेंट, कितने लोगों को पता फाउंडर्स एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है। एक मेरे पास आया कहता फाउंडर्स एग्रीमेंट बनाना है, मैंने उसको कहा अच्छा ये है इसमें, नहीं यार ये मैं फाउंडर से नहीं पूछ सकता, नहीं मैं ये पर्पस नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन नहीं डाल सकता उसमें। यार फाउंडर्स एग्रीमेंट का पर्पस ये है कि सारी क्लैरिटी पहले दिन कर लो,
है ना। और ये बैठने में पता चलती है मुझे अपने फाउंडर्स के साथ क्या क्लैरिटी करनी है जब आप क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करते हो। तो बहुत सारे हमारे पास स्टार्टअप आते हैं जिसने फाउंडर्स एग्रीमेंट नहीं बनाया था, बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप, यू अंडरस्टैंड दैट। बाकी सारे स्टेप कंपनी भी उसके अंदर लिखा जाता है कि इस स्टेज पे आके मैं कंपनी बनाऊंगा, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ये स्टेज पे आके बनाऊंगा, बट हम पहले दिन यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं, फिर कंप्लायंसेस में फंसे रहते हैं, ठीक है। सो ये जो सा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, कोर्स एवरी थर्ड सैटरडे सत्संग की तरह, किसी भी हफ्ते आपको 1 महीना छूट जाए, दूसरा महीना छूट जाए, तीसरा महीना छूट जाए, एवरी थर्ड सैटरडे आप अपने आप को स्लॉट फ्री कर सकते हो अगर इकोसिस्टम के बारे में जानना सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर पूरा फाउंडर्स एग्रीमेंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, ई-सॉप्स, इक्विटी, सेफ नोट्स, इन्वेस्टर क्या देखता है, स्टार्टअप क्या देखता है, एक सिचुएशन में आइडिया को देखता है, वो सब बताएंगे। सो एनीबॉडी इज वेलकम फॉर एनी थर्ड सैटरडे, एवरी थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ। डिटेल्स में भी और भी बाद में बताऊंगा, बट दिस इज जनरली हाउ आई एम ट्राइंग टू, these are generally stages of idea stage, co-founder stage, family. So generally होता क्या, sometimes startups comes and ask directly for seed round, है ना। We need to understand there are few stages we have to go through before directly getting that part. So these are generally stages how we go. I will not take much time. Next please. These are few investments: crowd investments, seed investments, angel investments, institutional bank funding, government grants, from where you can get all those funds for your startup and all. So understand this. These are the 4 S's of a business. So first is survival. जब स्टार्टअप स्टेज है, मैक्सिमम काम खुद कर रहे हो, you are the most valuable employee. Work stay in the reaches the next stage. Then is the second stage, struggle. Business model बन गया, product services है, refined processes हो गए, repeat customers आने शुरू हो गए, loyal customers हैं, मतलब जनरली ये MSME स्टेज मुझसे, है ना। आप इस स्टेज पे आ गए हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसे आगे नहीं जा पाते हो, ठीक है। थर्ड स्टेज, नए एक्वायर यानी स्केलिंग अप, एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, फंड रेजिंग, टीम बिल्डिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब आप वी आर इनटू फैमिली बिजनेस मोड, हम किससे डिस्कस करें, एम्प्लॉई से डिस्कस करें या अपने घर वालों से डिस्कस करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू नीड इक्वल माइंड, इक्वल पीपल टू डिस्कस योर आइडियाज में, अपने थॉट्स से, जो कि आपको रियल वीडियो बताए कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कहां से क्या चीजें आने वाली है ना। सो टीम बिल्डिंग, यू नीड अ टीम, यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म एंड यू नीड बोर्ड ऑफ एडवाइजर। और ये वन टाइम टास्क नहीं है, हर महीने एक मीटिंग फिक्स कर लो बोर्ड ऑफ एडवाइजर की, where you will get experts from all fields, marketing, legal, HR, everyone, जहाँ पे आप वो मीटिंग करो, मंथली मीटिंग करो अपने पूरे मंथ के इश्यूज पर। So actually my target is to give that stability over here, so that once you get stability you can actually scale up. So as a example, we are providing new customers, fundraising, team building, brainstorming, so that the ecosystem can happen only, again, right kind of people you communicate with. Next please. So that's why we are coming up not just with startup but MSME advisory. You need, business needs to get involved, but they have a limited cash flows. So we as advisors come in. You cannot have a A-level company with C-level performers. Remember that. अगर C-level performer है वो आपकी कंपनी में आएगा तो C-level ही perform करेगा. अगर A-level पे जाना है तो आपको E-level performer दीजिएगा, है ना? So that's why we are giving you that thing. Next please. So इसको हम समझे. देखो अगर आप एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, आप एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वीक। क्यों? क्योंकि कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है और उस कॉम्पिटिटर ने ऐसा कोई प्रोडक्ट दे दिया जो आप नहीं दे रहे, एंड दैट्स व्हाई कस्टमर इज गोइंग टू दैट शॉप। ठीक है, अगर रिसर्च ठीक है और आपके नई इंक्वायरीज नहीं आ रही है, नो न्यू इंक्वायरीज, नो न्यू पीपल आर इंक्वायरिंग व्हाट्स हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस योर मार्केटिंग ब्रांडिंग इज वीक। अगर मार्केट इंक्वायरी भी आ गई, कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हो आप, दैट मींस योर सेल्स इज वीक। सेल्स वाले बंदे को पता नहीं कि कैसे उसको कन्वर्ट करना। अगर सेल्स भी होगी बट यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, योर रिसोर्सेज आर वीक, मे बी ह्यूमन रिसोर्स और रॉ मटेरियल। अगर ह्यूमन रिसोर्स रॉ मटेरियल भी हो गया, सब चीजें हैं, तो आपके एचआर मैनेजमेंट भी ठीक है। क्यों? एचआर का काम क्या होता है? पोटेंशियल पे काम कराना, एफिशिएंसी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पोटेंशियल क्या, कई जगहों पे तो हम देखते हैं चाय नहीं मिल रही 3 बारी तो भी वो दुखी होते हैं, अरे लाइट नहीं अच्छी आ रही तो भी दुखी होते हैं, बट दैट इज एचआर हु कैन एक्चुअली डिस्कस विद देम अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। सीन इन पास्ट ऐसी छोटी छोटी तो मैं तो हैरान थी, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है, सिंपल वे। तो अगर एचआर भी ठीक है तो आप लीगल में फंसे हैं, डिस्प्यूट्स में फंसे हुए, लीगल इज वीक या कंप्लायंसेस में फंसे। और अगर सबका सही है, अगर आपका यहाँ बैठा रहता है या सारी चीजें सही है, तो सिर्फ एक ही कमी है, पैसों की।
फंडिंग फाइनेंस, या तो पैसा है तो आपको लगाना नहीं आता कैसे लगाए, या पैसे की कमी है. So that's why investments is just not for startups. Funding is required for MSMEs also. So we are working in that way कि चाहे वो MSME startup जो भी scale करना चाहता है, if funding or any of the processes of this is missing in organization, we'll help you in that way. Next please. So this is again we'll be doing a non-conflicting group, non-conflicting consulting. Every brand will come and see, give a board of advisory to you. In that way we'll help you out. So these are basic levels, advisory levels. First a consultant will go, who will be native. अब मैं ऐसे अगर टर्नर स्पेशलिस्ट फाइनेंस की करे तो देखते तो बेसिक अकाउंट्स ही नहीं होते. तो सबसे पहले बेसिक कंसल्टेंट जाएगा, बेसिक काम करेगा सारा. उसके बाद एक स्पेशलिस्ट आएगा जो उसको नेक्स्ट लेवल के रीजनल और नेशनल लेवल पर जाने की बात करेगा. देन एक्सपर्ट फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल विल कम इन, जो कि उससे नेक्स्ट लेवल स्केलेबिलिटी की बात करेगा, है ना. सो दीज आर द 3 लेवल जनरली वी गो बाय. फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल. नेक्स्ट प्लीज. यार एनर्जी हाँ बोलते रहो, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ऐसे बोली जा रहा हूँ. हाँ यस यस एनीथिंग यस Yes. सुन रहे थे मेरे को? Yes. पक्का? Yes. अच्छा ठीक है. So we will be having our own incubation and center also, but it won't be a co-working space. Why? Because we will be giving a professional guidance from ये जो पीछे categories बोली है ना, ये सारी categories के experts की services भी देंगे साथ में. So it will be run by professionals, यानी जितने भी being a CA, being a ISB alumni and all. So I'll be the core head of a team, and then experts from all those fields, HR, legal, financial, जो भी जितने भी मैंने पीछे सर्विस देखे, we'll give you full support. Next please. So we'll have a schedule of annual में, मतलब जितने भी founders agreement की टीम है, stage by stage we'll help you in that way. Milestones in your incubation you cannot just come and set. You'll be given a daily or weekly or monthly deadlines. आपको monthly deadlines achieve करनी है. अगर आप अचीव नहीं कर रहे, यू आर आउट ऑफ इट. दिस इज नॉट अ कोवर्किंग स्पेस एट ऑल. आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन है तो फिर आपको वो अचीव करनी है. सो दोस कंसेप्ट, सो दिस इज द थिंग जनरली. फर्स्ट लर्न. सो व्हाट आई वुड से कि इफ यू आर ऑल हियर, यू आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी यहाँ है ना वो लर्न करने आया है, मतलब वो इकोसिस्टम को समझना चाहता है और अच्छे से देखना चाहता है ना. सो लिसनिंग टू पिच, सो वी विल बी हैविंग स्टार्टअप पिच सेशंस. We'll be having investor speaker talks and all, and then invest not just your money, invest your time also. If you want to be part of it, just come to us. We'll help you how to give your fit. So many of you might be wanted to giving back to the society, है ना? So if you want to give back to the society, please come. We'll support you and we'll give you and we'll help you do that thing also. So become a board of advisors, grow wealth creation, automate everything, and this is how we can actually help you. So this is actually what we are going to do. जो मैं अभी पीछे बात करते हैं कैसे करेंगे. First month, first week, physical pitch sessions. 2 subject expert speakers will be coming and having a talk. Every first week of the month, maybe either Friday or Saturday, we will be having this plan. है ना? 2 speakers and then startup pitch sessions. Second week, we'll go to any college, incubation center, existing incubation center. We will groom those for 1 or 2 days, and then at the end of the day we'll have investors on panel, and those will be giving an investments and all. But then they want to commit maybe smaller amount, 1 lakh, 2 lakh, anything. आप में से यंग कौन रहना चाहता है जो थोड़ा कम यंग से ऊपर पहुंच गया है ना? मैं यही बोलूंगा, दिल सब कहेंगे दिल से तो सारे यंग हैं, तो कम यंग से जो थोड़ा ऊपर पहुंच गया, कौन यंग रहना चाहता है? तो जो यंग रहना चाहता है ना वो इन्वेस्ट कर दो स्टार्टअप में. सिंपल. इफ यू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, ठीक है, तो फिर आप यंग रहो, क्योंकि जो स्टार्टअप नई टेक्नोलॉजी, नई डेवलपमेंट्स रोज जो सीख के ला रहा है ना, वो आप जब इन्वेस्ट करोगे ना वो चीजें भी सीखोगे. You'll able to understand how things are happening. Just invest maybe for a trial basis 1 to 2 lakh rupees. अगर आप उतने करोगे उससे समझ आएगा तब स्केल करो. जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही मेरे को 1 करोड़ लगाना है ना? तो उस पर इन्वेस्ट करोगे, then ecosystem will start develop. You will also understand. नहीं तो कभी भी आपसे कोई एडवाइस मांगने आता है तो अपना असूल है ना, मुझसे कोई एडवाइस मांगे, मैं तो कहूंगा नहीं कि मैं एडवाइस नहीं दे सकता. मैं क्या करूंगा, जितनी एडवाइस आती है उतनी दूंगा, तो चाहे गलत भी हो चाहे सही भी हो. तो मतलब मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मेरे पास को मार्केटिंग एडवाइस देने आएगा तो मैं कहूंगा ठीक है यार तू ऐसे कर, तू फेसबुक पे ऐड चला ले, वो चला ले, जबकि मुझे पता ही नहीं होता क्या, मेरे को खुद नहीं अभी तक अपनी कंपनी का पता ऐड कैसे चलती है या क्या होता है ना. तो वो क्या फिर भी हम एडवाइस देते हैं. तो दुनिया में 16 कोई एडवाइस मांगने आएगा, दे दो एडवाइस. सो पॉइंट इज
कि आप अगर एडवाइस एक एक्सपर्ट से लोगे you'll scale. So then is third, which I've already talked about. Every third Saturday is fixed for understanding founders agreement, preliminary course and all. Fourth week we'll be having online pitch session from outside this region, Bangalore, Hyderabad. So this one we'll be having Australian pitch session. मतलब Australians will be giving a pitch session to us over here. वो क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन इकोसिस्टम. हम कह रहे हैं ना बैंगलोर जैसा या कहीं बाहर जैसा इकोसिस्टम. जब मैं देखूंगा बाहर की पिच सेशंस कि वो कैसे स्टार्टअप्स पिच करे, तभी आई एबल टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. स्टार्टअप्स विल आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स एंड ऑल. देन फिफ्थ वीक अगर कभी होता है, कई बार नहीं होता, बहुत रेयर है, तो फिर हम पार्टी कर लेंगे, है ना. So that's the plan generally. So this is how I'm going to do. This is generally due to shortage of time, I think I'll skip this. So we'll be having connecting the dots, and as a connecting dot, we'll be having weekly meetings, monthly meetings all over India. So business hubs of India, maybe एक second picture दिखा दूँ. So business monthly meetings in the region, Ludhiana, Amritsar, things and all. Quarterly meetings, Mumbai, Bangalore, business hubs of India, and then annual meetings out of India. पर कोई भी स्टेज पे ऐसे ही आएगा. वीकली मीटिंग अटेंड करेगा तो आगे आ सकता है, वो अटेंड करेगा तो आगे आ सकता है. कोई भी डायरेक्टली एनुअल मीटिंग के लिए नहीं आ सकता कि चलो बाहर घूमने चलते हैं. ठीक है, that's all. So we are partners with SIPBN. Sydney Investors is our main partners. So Sydney Investors is a partners for Punjab Angels Network in India. And जो भी venture capitalists या funds हैं, so they are supporting. They have funds also. And so they are also coming up with a summit where you can raise 10 million. And if you can raise that money, so that event is open. We are going. If you want to go, there is a team of 10 to 15 people as corporates. We can go and have a delegation, and where ministers, corporates, and all everyone can meet up. So this is what I'm trying to do: creating an entrepreneurship ecosystem in this region. Next, please. So I'm on a mission. Maybe where startups are there, investments and MSMEs. We'll be supporting through this only. I think I can create that ecosystem in this region. Next, please. Thank you. If you have any question, anyone? Hello. Yeah. तो पता नहीं चलता कई बार समझा तो फिर वो एक वो कहते हैं ना. So there was a story. मे भी यहाँ से याद आ गया कि एक बार ना एक गाड़ी जा रही होती है, एक बच्चा पत्थर उठाकर उस गाड़ी को मार देता है. So वो गाड़ी वाला उतरता है, कहता है क्या पत्थर क्यों मार दिया ऐसे गाड़ी में? कहते हैं क्योंकि 10 गाड़ियां मैंने रोकने की कोशिश की, किसी ने रोकी और वहां पे एक बंदा गिरा हुआ है. तो जस्ट टू क्रिएट दैट अट्रैक्शन यू हैव टू थ्रो अ स्टोन. कि को रोके मुझे तभी रुकेगा क्योंकि पत्थर आएगा तो रुकेगा, चाहे मेरे को डांटे रुके, रुकेगा तो सही ना. सो दैट्स द पॉइंट. समटाइम यू नीड समवन टू शेक यू अप, चाहे पत्थर मार के क्यों ना करना पड़े, है ना. सो दैट्स द पॉइंट. सो आई कैन हेल्प यू इन दैट आल्सो. सो मैं पत्थर मारने वाला हूं. एनीवन हैविंग क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस प्लीज? What's the procedure to join and fee? So that is the last part of our events. So I'll tell you जब event खत्म होगा सबसे last. Anything else? या तो मैंने बहुत अच्छा बोला है, बिल्कुल नहीं अच्छा बोला. तो आप कह रहे हैं कि if you want to get into की कंपनी में आप initially consultant certificate करेगा. What is that? So that's a concept I called a business health checkup. So we do a business, जैसे बॉडी का हेल्थ चेकअप होता है ना, कि हम क्या करते हैं, एक टेस्ट है, एक उसके आगे पैरामीटर्स हैं. अब मुझे पता ही नहीं मैं सही हूँ खराब हूँ, मैं कहता हूँ चीनी खाई जाओ, शुगर खाई जाओ, वो तो टेस्ट ही बताता है ना शुगर खाई है. तो हम तो सोचते हैं बड़ा अच्छा चल रहा हूँ सारी फील्ड में. सो दैट्स द वेल्थ चेकअप विल डू. विल कम एंड फर्स्ट सी आपके वीक एरियाज कौन से, क्योंकि वो 8 में से कोई भी बंदा ना 2 से 3 में एक्सपर्ट नहीं हो सकता ज्यादा में, है ना. हर कोई 2 या 3 में एक्सपर्ट हो सकता है, तो बाकी उसको चाहिए, लेकिन उसको पता ही नहीं मेरे वीक स्पॉट्स हैं क्या. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेज. वी डू अ बिजनेस वेल्थ चेकअप, जहां पे आपके वीक एरियाज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, आपको बताएंगे दीज आर द वीक एरियाज. और वीक एरियाज होने के बाद चाहे आप खुद इंप्लीमेंट करो और माय टीम विल हेल्प यू एस्टैब्लिश दैट आल्सो. इंप्लीमेंट दोस वीक एरियाज, मतलब उसके जो खत्म करने के लिए विल हेल्प यू इन दैट इंप्लीमेंटेशन आल्सो इन दैट. तो खाली दवाई बताएंगे नहीं, दवाई खिलाएंगे भी, है ना. सो कहते हैं कई बार आते हैं एडवाइजरी बता दे ये कर लो, पर होता है नहीं, हमारे पास टाइम है नहीं है. हम तो वही डे टू डे में घुसे हुए हैं, कौन इंप्लीमेंट करे. अच्छा तो बड़ा लग रहा है ना. Give us an authority, we implement that. Yes. Anyone else? So thank you so much. I think Dheeraj will take over here.